हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फोर्थ वीक ऑफ फरवरी की। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सेशन अपना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। So friends, we have an app by the name Carious Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded and logged in through your Gmail ID, you will be transferred to this page. And you can see here various all courses and various other sections provided to us. The courses that are provided by our team are very helpful and they will be very useful in your preparation. In the courses that we provide, we give you daily current affairs, weekly current affairs and monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with multiple quiz of 20 questions daily. Then we'll be giving you the daily current affairs content also. Similarly for weekly, we will providing you 50 questions of quiz on weekly basis, as well as all the important current affairs of that week will be given to you in an ebook. Similarly for monthly basis. Apart from this, we'll be providing you with banking awareness and all the banking relating exams. So don't worry, your preparation is in our hands. We'll be providing you with the best content. Apart from this, then you should know we covered topic wise. Important daily topic wise or the monthly topic wise are covered in our course. We'll give you 20 types of such PDFs that will cover apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs, sports, awards, applications and web portals, and defense sector. All the topics that you see of general studies are basically covered here. As you saw, we provide current affairs in English, Hindi, banking awareness, exam PDF, special current affairs, topic wise current affairs are provided to you, state current affairs, then topic wise quizzes are provided to you. There is another section in special current affairs that is learn from picture, and we have named this infographics. Infographics are your interactive PDFs that you can interact with. They are highly informative. I highly suggest you to go and check these out because they will be helping you to learn things in an interactive way. So do check them out, they will be very valuable to you. These are very important, so you should be able to revise them from using our course. All you have to do is to purchase our course. You can use code Vikas10, that will be giving you an additional 10% discount on the purchase you make. So it is a bumper offer. All you have to do is go and download our app and check our courses. So friends, we'll start with the session. वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम फोर्थ वीक ऑफ फेब के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़। इंडिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। मार्क करना, फर्स्ट इंडिया का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी महाराष्ट्र में। खजुराहो डांस फेस्टिवल पूछ ले या खजुराहो डांस फेस्टिवल या खजुराहो फेस्टिवल पूछ ले तो कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश में। ये असम वो पहला स्टेट बना जिसने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए। मार्क करना, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, और वो पहली स्टेट कौन सी बनी? वो बनी आपकी असम। फिर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया किसान ड्रोन यात्रा एंड फ्लैग्ड ऑफ 100 किसान ड्रोन्स टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन फार्म्स पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए 100 किसान ड्रोन्स यूज़ किए। और इन्होंने किसके अंडर एक और यात्रा इनॉग्रेट की? वो है किसान ड्रोन यात्रा। केरला स्टार्टअप मिशन की अगर हम बात कर लें, इन्होंने पार्टनर किया गूगल के साथ फॉर स्टार्टअप्स टू फॉस्टर ग्लोबल लिंक्स। सेंटर ने अप्रूव किया कॉन्टिन्यूएशन ऑफ नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम कितने 5 साल के लिए, जिसका आउटले रहेगा 1827 करोड़ रुपए। फिर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। BIM कब से लेके कब तक की बात की गई? 2021 से लेके 2025-26 तक की बात की गई, फॉर एन फाइनेंशियल आउटले ऑफ 13,020 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया इट्स पार्टिसिपेशन in the CME V6 undersea cable consortium as a major investor to scale up high speed global network capacity। तो इनका टारगेट किन के साथ इन्होंने टाई अप किया? भारती एयरटेल के साथ टाई अप किया, याद रखना। और इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि भारती एयरटेल है ना, ये इनका मेजर इन्वेस्टर बना है। एंड ये जो अंडरसी केबल फैलाने की बात की गई है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगापुर से लेके फ्रांस तक इस केबल को फैलाया जाएगा। और ये जो 12,000 किलोमीटर लंबी 19,000
200 किलोमीटर लंबी ये वायर रहेगी, अंडर सी केबल है, और ये अंडर सी केबल, और भारती एयरटेल इनका मेजर पार्टनर रहेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट इट विल लैंड मल्टी टेराबाइट इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम इन मालदीव्स टू कनेक्ट इंडिया एंड सिंगापुर? तो किन के द्वारा किया जाएगा ये? रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के द्वारा ये टाई अप करा जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इसमें आपको याद रखना ये जो IAX है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ होगा? मुंबई में, इन द वेस्ट, और ये कनेक्ट करेगा डायरेक्टली सिंगापुर को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इसके अलावा इसके बीच में काफ़ी सारे स्टॉप्स भी रहेंगे, इंडिया में भी रहेगा, मलेशिया में भी रहेगा, थाईलैंड में भी मल्टीपल स्टॉप्स रहेंगे। नेक्स्ट, द बायलेटरल एयर एक्सरसाइज नेम्ड ईस्टर्न ब्रिज 6, ये सबसे पहले तो याद रखना लोकेशन कहाँ पे हुई? ईस्टर्न ब्रिज 6, ये एक्सरसाइज जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में हुई, राजस्थान में। स्टेट पूछा जाए तो राजस्थान। ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। फिर पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई? ओमान के साथ कंडक्ट कराई। फिर इसी के साथ साथ आपसे पूछ लेगा कि कौन सा एडिशन था, तो ये 6th एडिशन था एक्सरसाइज का। ठीक है, 5 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी। ऑलराइट, तो करेक्ट ऑप्शन 5। नेक्स्ट, सेंटर एक्सटेंडेड PM केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन स्कीम टिल 28 Feb 2022। असम गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहन टू हॉन स्टूडेंट स्किल्स। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली हेडक्वार्टर्स डिक्लेयर्ड अ प्रोहिबिटेड प्लेस। जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने अप्रूव किया 1000 करोड़ रिवर क्लीनअप प्रोजेक्ट इन पुणे। इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया आगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर ने रिलीज किया एक सिग्नेचर ट्यून ऑफ वंदे भारतम कंपोज्ड बाय रिकी केज एंड बीकाराम घोष। मार्क करना, ठीक है। ये वंदे भारतम ये कंपोज किनके द्वारा? रिकी केज एंड बीकाराम घोष के द्वारा इनको कंपोज की गई है। गिरिराज सिंह लॉन्च प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड। गिरिराज सिंह ने ही एक ओम्बड्समैन पर्सन ऐप लॉन्च की फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मनरेगा स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मनरेगा स्कीम के लिए उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक ओम्बड्समैन पर्सन ऐप लॉन्च की गई, और गिरिराज सिंह ने ही एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को इसका डैशबोर्ड लॉन्च किया। फिर अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज एंड भेल, इन्होंने कमीशन किया इंडिया का पहला सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट जिसके 7 मेगावाट का है, और ये कहाँ पे? बीना, मध्य प्रदेश में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिसेंटली साइन किया एक लोन एग्रीमेंट ऑफ $63 मिलियन विद IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल एक्सेस टू अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स इन इंडिया। लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए ये किया गया। ये क्वेश्चन ऑप्शन हाँ बताइए। $68 मिलियन अप्रूव किए गए विद IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड टू इम्प्रूव द जो लोअर इनकम हाउस होल्ड ग्रुप होते हैं ना, जो लोअर इनकम फैमिली होती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोग वो अपना घर खरीद सकें। ये अपॉर्चुनिटी किन के द्वारा दी गई? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी गई थी। और इसके याद रखना, जो 80% इसका अमाउंट होगा ना, वो वीमेन बोरोअर्स को मिलेगा। ठीक है, महिलाओं को मिलेगा, और जो बाकी परसेंट बचा वो कोई भी अवेल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली साइंड एन एक्वायरिंग पार्टनर फॉर ई-रूपी सर्विस टू मेक एसेसिबल एट ऑफलाइन स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। ये ई-रूपी, ठीक है, एक्वायरिंग पार्टनर सबसे पहले तो बताओ इनका एक्वायरिंग पार्टनर कौन बना ई-रूपी सर्विस का? वो बने पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन है। ठीक है, और इन्होंने ही रिसेंटली साइन किया एक एक्वायरिंग पार्टनर फॉर ई-रूपी सर्विस टू मेक एक्सेसिबल एट ऑफलाइन स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ अप्रूव बनाने की बात की गई? दिल्ली में। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर विद एन आउटले ऑफ 200 करोड़ रुपए टू बी सेटअप इज सिंधुदुर्ग। देन BSC यमुना पावर लिमिटेड कमीशन इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन न्यू दिल्ली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन न्यू दिल्ली में डेवलप की गई। अगर और मैं पूछूं लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ऑफ इंडिया कहां बनाने की बात की गई, तो गुरुग्राम, हरियाणा में। तमिलनाडु ओवरटूक कर्नाटका टू बिकम द टॉप स्टेट इन ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी। और इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं, राजस्थान वो स्टेट बन गया है जिसने ओवरऑल 10,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी को कंप्लीट किया है थ्रू
रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर इसके अलावा ये भी याद रखना, इस पे हमने वीडियो बनाई थी, तो आप देख सकते हैं पूरी वीडियो हमारे चैनल पे, कि तमिलनाडु ने ओवरटेक कर लिया कर्नाटका। अभी क्या था, लीडिंग स्टेट थी इन द ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, बट अब किसने ओवरटेक कर लिया, तमिलनाडु ने। फिर है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकेम द पावर पॉजिटिव विद द न्यू सोलर पावर प्लांट। मतलब जो वो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और वो जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो जितनी जनरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वो जितनी कंज्यूम कर रहे हैं। Next, in February, Dash became the first bank to enter metaverse to open a launch named Onyx through blockchain technology in Decentraland. Decentraland, ठीक है, पहले तो मेटावर्स की बात करते हैं। मेटावर्स किस कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, मेटा के द्वारा। मेटा कौन सी कंपनी का नाम था, है मतलब फेसबुक का नाम था। फेसबुक इनकी है मार्क जकरबर्ग, और इसी के साथ याद रखना फेसबुक ही ऑन करता है इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को भी, ठीक है। तो वो कौन सा पहला बैंक है जिसने मेटावर्स में एक लॉन्च ओपन किया ऑनिक्स के नाम से, वो है जेपी मॉर्गन चेज एंड को। ये यूएस का सबसे बड़ा बैंक रहेगा। Next, which company recently extended its flagship campaign Team Cashless India along with SBI payments to boost digital payment infrastructure in Guwahati, Lucknow and Varanasi? तो किस कंपनी ने अपना फ्लैगशिप कैंपेन टीम कैशलेस इंडिया लॉन्च किया अलॉन्ग विद एसबीआई पेमेंट्स, वो रहेगा मास्टर कार्ड, ठीक है। एसबीआई पेमेंट के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया टीम कैशलेस इंडिया, ताकि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल सके। कहां पर, गुवाहाटी, लखनऊ एंड वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेम द कंट्री, उस कंट्री का नाम बताओ जिसने रिसेंटली टेस्टेड द आयरन डोम बेस्ड नेवल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया, जिसका नाम था सीडोम, या फिर उसको आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव डोम। सीडोम या प्रोटेक्टिव डोम, ये किस कंट्री का नेवल डिफेंस सिस्टम है, ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस वॉरशिप के द्वारा टेस्ट फायर किया गया था, वॉरशिप का नाम है मेवन नेवल वॉरशिप, ठीक है। और ये इजराइल की बात कर रहे हैं हम यहां पे। नेक्स्ट, हु वन द एयरथिंग मास्टर्स चेस टूर्नामेंट एंड बिकम द थर्ड इंडियन टू डिफीट मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं 2011 से लगातार। तो आर प्रगनंदा, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा ये वो व्यक्ति बने हैं, बच्चे बने हैं, ये 16 साल के हैं। इन्होंने अभी जीता एयरथिंग्स मास्टर्स चेस टूर्नामेंट। पूछा जा सकता है कि एयरथिंग्स मास्टर किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, तो वो चेस से बिलोंग करता है। आर प्रगनंदा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो चेस से बिलोंग करते हैं। मैग्नस कार्लसन किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी चेस से बिलोंग करते हैं। और मैग्नस कार्लसन वो तीसरे इंडियन बने हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है, उनको हराया। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन आफ्टर 40 ईयर्स। आईओसी का सेशन कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2023 में आफ्टर 40 ईयर्स। इससे पहले 1983 में ये लास्ट आईओसी का सेशन होस्ट किया था इन्होंने, वो रहेगी हमारी इंडिया। नेक्स्ट, अगर मैं इंटरनेशनल न्यूज़ की कुछ बात करूं तो डेलॉयट 2022 सीएक्सओ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इंडियन बिजनेस रैंक 5th रैंक पे है इंडियन बिजनेसेस। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, इन्होंने यूक्रेन को डिवाइड किया 3 कंट्रीज में। ये आप अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर, अभी मतलब वॉर चल रही है, तो अभी कुछ नहीं पता। तो लेट्स सी, उनसे रिलेटेड अभी ये न्यूज़ पक्की नहीं रहेगी। India and France signed a roadmap on blue economy and ocean governance. Reliance Jio will launch India Asia Express undersea cable system in Maldives. इंडिया विल सेटअप, इंडिया का पहला या फिर आप कह सकते हैं आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा फॉरेन अब्रॉड में, वो कहाँ होगा, दुबई यूएई में। इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नॉट इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसमें से कौन सा इंश्योरेंस उस इंश्योर्ड नहीं होता, आपसे ये पूछा गया है, बताइए कौन सा इसमें से इंश्योर्ड नहीं है। तो प्राइमरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज इंश्योर्ड नहीं है। इसके अलावा याद रखना, अगर मैं बताऊं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स, अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ये सारे वो बैंक्स हैं जो कि इंश्योर्ड होते हैं बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद एन आउटले ऑफ 1827 करोड़ रुपए।
अपर भद्रा प्रोजेक्ट ये पहला प्रोजेक्ट है इन डैश स्टेट टू गेट नेशनल स्टेटस। अपर भद्रा प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में है, पहले तो ये बताओ। ये कर्नाटका का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड अपर भद्रा प्रोजेक्ट इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिला बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट रिसीव्ड एन 12,500 करोड़ रुपए इसको ग्रांट मिला फ्रॉम द सेंटर ऑल्सो। और ये पहला प्रोजेक्ट है टू गेट द नेशनल स्टेटस ऑफ कर्नाटका, मतलब इट गेट द नेशनल स्टेटस, प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस मिला। और ये प्रोजेक्ट कहाँ का है, कर्नाटका का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साइंड एन MOU विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स टू कोलैबोरेट ऑन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए इंडिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टाई अप किया NIUA के साथ। मार्क करना, इंडिया एंड नेपाल विल सेटअप अ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन बिल्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट, 10वां इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अनुसार इंडिया की रैंक रही 43rd। ये जो रैंक है 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज है, और इसमें टॉप करने वाली कंट्री बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जापान एंड इंडिया रिन्यूड बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट ऑफ अप टू $75 बिलियन। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू फंड एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जिसको गोवर्धन भी बोला जाता है, ये कहाँ पर है, ये रहेगा इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश में रहेगा। और कौन सा बैंक है जो इसको पार्टनर कर रहा है, वो रहेगा आपका HDFC बैंक। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जिसको गोवर्धन भी बोलते हैं, ये कहां पर रहेगा, इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद ट्रिप मनी। किस बैंक ने भी ट्रिप मनी के साथ पार्टनर किया, वो रहेगा आपका SBM बैंक इंडिया ने पार्टनर किया ट्रिप मनी के साथ। क्या लॉन्च करने के लिए, टू लॉन्च अ रुपी डीन मोनेटाइज्ड ग्लोबल क्रेडिट कार्ड। आई रिपीट, रुपी नॉमिनेटेड ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया ट्रिप मनी अलॉन्ग विद SBM बैंक इंडिया ने। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए 2 नई सर्विस टू एनहेंस बोथ आउटवर्ड रेमिटेंसेज एंड इनवर्ड रेमिटेंसेज थ्रू नेट बैंकिंग एंड UPI। आउटवर्ड एज वेल एज इनवर्ड रेमिटेंसेज को इंट्रोड्यूस किया थ्रू नेट बैंकिंग एंड UPI। किस बैंक ने, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा किया गया बताइए जरा, किस बैंक के द्वारा ये किया गया है, वो रहेगा आपका साउथ इंडिया बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिसेंटली अप्रूव किया 100 करोड़ का अप्रूव्ड 1000 करोड़ रुपीस टू मूला एंड मुठा क्लीनिंग रिवर प्रोजेक्ट इन पुणे। अभी हमने देखा था कुछ जीका ने 1000 करोड़ रुपए अप्रूव किए थे फॉर रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट इन पुणे, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इन्होंने अप्रूव किए 100,000 करोड़ रुपए फॉर मूला एंड मुठा क्लीनिंग रिवर प्रोजेक्ट इन पुणे। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन देखते हैं। सेंटर ने नॉमिनेट किया संजय मल्होत्रा को एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। तनिष्का कोटिया एंड रिद्धिका कोटिया इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुड़गांव फॉर द प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुधा रघुनाथन अपॉइंटेड मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर। विपुला गुनाटेलिका अपॉइंटेड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ जेट एयरवेज। ताकुया तुस्मारा अपॉइंटेड प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ होंडा कार्स इंडिया। KN राघवन इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप। इंडिया इलेक्टेड चेयरमैन फॉर दिस IRSG, ठीक है। इनके चेयरमैन कौन बने IRSG के, KN राघवन, और चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी, किस कंट्री के पास, इंडिया के पास रहेगी। संजीव सन्याल इनको इंडक्ट किया गया फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, मत्स्य 6000 वॉज डिजाइन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले याद रखो मत्स्य 6000 है वो एक डिवाइस है, या फिर आप एक कह सकते हैं एक रोवर है जो आपका सी डेप्थ में जाएगा फॉर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। आप इसको ओशन में डाल देंगे ताकि ये एक्सप्लोर कर सके। ये इंडिया के समुद्रयान प्रोजेक्ट जो रहेगा, जो कि हम 2024 में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, उसमें उस मिशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। समुद्र यान मिशन ये हम 2024 में लॉन्च करेंगे, तो जो इसको बनाने की बात की जा रही है मत्स्य 6000 मशीन को, ये भी 2024 तक रेडी होकर बात करेगी। एंड ये 6000 इसलिए क्योंकि ये 6000 मीटर की डेप्थ तक एक्सप्लोर कर सकती है। फिर पूछा जा रहा है इसको बनाया किसके द्वारा जा रहा है, इसरो के द्वारा इसको डेवलप करा जा रहा है। नेक्स्ट, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये एक बुक है अबाउट द लीडरशिप ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द कोविड-19 के टाइम पे, कि उन्होंने
क्या लीडरशिप दिखाई, क्या क्या उनके डिसीजन थे, सारी चीज़ें इस बुक में आ जाएंगी। अ नेशन टू प्रोडक्ट, ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई? प्रियम गांधी मोदी के द्वारा इस बुक को ऑथर करा गया। नेक्स्ट है ऋषभ पंत अपॉइंट किए गए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिश टीवी। नितिन प्रांजपे अपॉइंटेड द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड संजीव मेहता इनको सीईओ बनाया गया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। राकेश शर्मा इनको रीअपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। अभिषेक सिंह इनको अपॉइंट किया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का चीफ। के एस मानी इलेक्टेड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। मधाबी पूरी बक इनको अपॉइंट किया गया और ये पहली फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन बनी सेबी की। इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना। मधाबी पूरी बक ये पहली वीमेन चेयरपर्सन बनी सेबी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013? स्टैट्यूटरी प्रोस्पेक्टस नहीं है आपका, इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ठीक है। नेक्स्ट, 7th सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 फरवरी 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट, पीएम किसान स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पीएम किसान स्कीम आपकी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? पहले तो याद रखिए, हमने इस बार 3rd एडिशन या फिर 3rd एनिवर्सरी ऑब्जर्व की पीएम किसान स्कीम की। पीएम किसान स्कीम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये 24 फरवरी 2022 को हमने 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया। ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। इंडियन रेलवेज एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने कमीशन किया इंडिया का पहला सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1.7 मेगावाट। ये कहाँ पे डेवलप करने की बात की गई? ये हमने वन लाइनर में डिस्कस किया था, बीना मध्य प्रदेश में इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट, फिर डिफेंस से रिलेटेड, इंडिया और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज हुई। कहाँ पे? जोधपुर में, 21 से 25 फरवरी के बीच में। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अभी एक सी डोम्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपना टेस्ट फायर किया था। किन्होंने? इजराइल ने। और याद रखना, इजरायली वो कंट्री है जो कि इंडिया की 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करने की बात की है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 में, जो कहाँ पे होगी? यूनाइटेड किंगडम में, मार्क करना। इंडियन नेवी ने एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2022 के नाम से कंडक्ट करानी स्टार्ट की। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया 1075 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट विद बीईएल फॉर रेट्रो मॉडिफिकेशन ऑफ कमांडर साइट ऑफ बैटल टैंक्स T-90। 3rd इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन की बात करें तो ये कंडक्टेड इन कर्नाटका में, इसको कंडक्ट कराया गया। अंडर विच पोर्टल द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट रिसेंटली साइंड एन MOU विद CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड SPV टू ऑनबोर्ड पेंशन सर्विसेज अक्रॉस इंडिया? तो किस पोर्टल के अंडर? वो आपका स्पर्श पोर्टल के रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टेड इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, जिसको अंजी खड ब्रिज बोला जाता है। ये क्या है? इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है अंजी खड ब्रिज। और ये अंजी खड ब्रिज किस रिवर पे रहेगा? ये आपका अंजी रिवर पे बिल्ट होगा। पूछा जा रहा है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इसको डेवलप किया जाएगा? अंडर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो ये जम्मू एंड कश्मीर आपकी यूनियन टेरिटरी रहेगी, वहां पे अंजी खड ब्रिज को डेवलप किया जाएगा अंजी रिवर के ऊपर, जो कि इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ने अप्रूव किया टू सेटअप बिड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी बिल्ड की गई? रेसलिंग अकेडमी, वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी किसके द्वारा बिल्ड की गई? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा डेवलप की गई। और कहाँ पे? किशनगंज दिल्ली में इसको बिल्ड किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बताया गया कि कौन सी अच्छा ऐसा समझो इसको, ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार वो कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स हैं इंडिया में? 20,300 मिलेनियर हाउस होल्ड है ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? बीजिंग, चाइना में हुए थे। इसमें मेडल टैली में टॉप करने वाली कंट्री कौन बनी? नॉर्वे बनी। 16 साल के
आर प्रगनंदा, मैंने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि ये वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे इंडियन बने हैं और इसी के साथ ये एयरथिंग्स मास्टर्स भी इन्होंने जीता। फिर मीराबाई चानू की बात करें, इनको गोल्ड मिला इन सिंगापुर एंड क्वालिफाइड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स इन 55 kg वेट कैटेगरी। कार्लस एल्क्राज बिकेम द यंगेस्ट ATP 500 विनर बाय विनिंग मेंस सिंगल टाइटल इन रियो ओपन 2022। राफेल नडाल, इन्होंने मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022 जीता। फिर पूजा जतायन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक नया पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड IATA पे अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टू एनेबल इंस्टेंट एयरलाइन पेमेंट। इंस्टेंट एयरलाइन पेमेंट के लिए IATA पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए ज़रा किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगर मैं इनकी बात करूं CEO कौन रहेंगे तो ये हैं जरीन दारूवाला, ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। फिर है किन के द्वारा रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये हमने क्वेश्चन अभी वन लाइनर में देखा था, कौन रहेंगे, वो है संजीव सन्याल, ये बने हैं अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा पहला की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, पहला इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को यूपी के प्रयागराज एंड विंध्याचल में इसको टेस्ट किया गया। और टेस्ट करने वाले कौन कौन थे, किसकी निगरानी में, DRDO अलॉन्ग विद IIT दिल्ली ने भी इसकी टेस्ट में हेल्प करी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया IIT दिल्ली, DRDO, और इसको टेस्ट कहाँ करा गया, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को प्रयागराज एंड विंध्याचल जो कि उत्तर प्रदेश में, तो स्टेट आ जाए तो उत्तर प्रदेश याद रखना। नेक्स्ट, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क आपका तेलंगाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक साइन किया एक MOU नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ। अगर आपको याद होगा, अगर हमने हमारी वीडियो देखी होगी तो आप इसको देखते ही बता देंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और NIUA इंडिया के द्वारा जॉइंटली एक हम इंडिया में सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया कि इंडिया में सस्टेनेबल सिटीज को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेज, 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे एंड वर्ल्ड स्काउट डे, 24 को सेंट्रल एक्साइज डे, 27 को 3 डे याद रखना, वर्ल्ड एनजीओ डे, पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे एंड नेशनल प्रोटीन डे, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे और 28 को ही रेयर डिजीज डे जो कि लास्ट डे ऑफ फरवरी भी होता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम रहेगी शेयर योर कलर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की। हमने देखा था इंडिया की क्या रैंक रहेगी, इसमें इंडिया की रैंक रहेगी 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज, और इसमें टॉप करने वाली कंट्री कौन बनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका यहाँ पर, 4th। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोलेटरल एट स्टॉक ब्रोकर्स। कब तक, इसको 2 मई 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई, जो कि पहले 28 फरवरी 2022 थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस बैंक ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद नेशनल हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी टू मोनेटाइज ROE ऑफ 540 मेगावाट कैमरा 1 पावर प्लांट इन हिमाचल प्रदेश फॉर 10 ईयर्स। किस बैंक के द्वारा, ये रहेगा आपका HDFC बैंक, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, who recently got reappointed as the managing director and chief executive officer of IDBI Bank for a term of 3 years। किनको रीअपॉइंट किया गया, ये भी वन लाइनर से है, किनको रीअपॉइंट किया गया CEO एंड MD ऑफ IDBI बैंक फॉर 3 साल के लिए, किनको अपॉइंट किया गया, बताइए जरा नाम, राकेश शर्मा को, वेरी गुड। नेक्स्ट, who got elected to the board of directors of the National Cooperative Dairy Federation of India। NCDFI के किनको इलेक्ट किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कौन रहेंगे, KS मानी जी। सारे वन लाइनर्स में से अगर आपने अच्छे से नोट बनाए होंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। किस मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया ओम्बड्समैन पर्सन ऐप मनरेगा के लिए, ये भी हमने देखा था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप किया गया एक ओम्बड्समैन ऐप फॉर मनरेगा टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑफ ई-गवर्नेंस, काफी अच्छा क्वेश्चन। फिर इमिग्रेशन, वीजा एंड फॉरेन रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रैकिंग के लिए इज वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन बाय किस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये आप देख रहे हैं इमिग्रेशन, वीजा लगाना, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन करना, उनकी ट्रैकिंग करना, ये तो होम अफेयर्स का काम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आ जाता है ये, ठीक है, यही पूछा गया है, सिंपल।
निरीक्षण सदन म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है? निरीक्षण सदन म्यूजियम आपका कहाँ लोकेटेड रहेगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और याद रखना, विशाखापट्टनम जो है ना, निरीक्षण सदन म्यूजियम इज बिल्ट बाय ड्रैगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? ड्रैगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बिल्ट किया गया। ठीक है, और ये कहाँ पर रहेगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कंपनी, सब हटा दो, सिंपल क्वेश्चन, इंडिया की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी है? एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। तो इंडिया की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी रहेगी? वो है, बताइए, डाबर या नेस्ले? बिल्कुल डाबर इंडिया की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी रहेगी। नेक्स्ट, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अभी हमने देखा, ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि किस स्टेट ने टॉप किया इन द ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय सरपासिंग कर्नाटका? वो रहेगा आपका तमिलनाडु। और फिर वो कौन सी पहली स्टेट बनी इंडिया की जिसने 10,000 मेगावाट का टोटल सोलर कैपेसिटी को क्रॉस किया? वो रहेगा आपका राजस्थान। ठीक है, 10,000 मेगावाट की टोटल सोलर कैपेसिटी को सरपास किया। तो करेक्ट ऑप्शन यहां बन जाता है आपका ऑप्शन 5। नेक्स्ट, नेम द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में कंडक्ट कराई जाएगी, जिसकी थीम रहेगी कमरेडरी, कोहिजन एंड कोलैबोरेशन। क्या नाम रहेगा एक्सरसाइज का? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज रहेगी मिलान 2022। एक चीज और, ये जो विशाखापट्टनम है ना, इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं, सिटी ऑफ डेस्टिनी। Next, as a part of comprehensive economic partnership agreement, in which country India is planning to establish first IIT outside India? तो हमने क्या बताया था? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया अपना पहला IIT बनाएगा आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट, अभी एक जॉइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी की बात हुई थी ड्यूरिंग द 9th मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप एंड जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। बताइए किस कंट्री के बीच में ये जॉइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी सेटअप करने की बात की गई? तो वो रहेगा इंडिया एंड नेपाल। ये सारे ही वन लाइनर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने वन लाइनर कर लिया, नोट बना लिए, तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे आपसे। इन विच प्लेस, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ डेवलप करने की बात की जा रही है? न्यू दिल्ली में डेवलप करने की बात की जा रही है। और किसके द्वारा? BSES यमुना पावर लिमिटेड के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।